Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nidhai go Haribo, Haribo. Nidhai go Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Radha Govinda Dev Ki, Jagannath Baldev Subhadra Maharani Ki,
Sisi Gaur Nitai Ki, Srila Prabhupada Jagadguru Ki Nitai Gaur Bhimanande. Sometimes you give class in Hindi. No, just put it one step down. One step down. No. Okay, yeah, that's good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is 10-9? 1 and 2 also? Or 1? Sri Shukavacha Ekada Grihadasisu Yasodananda Gehini Karmantara Niyuktasu Nirmamanta Swayam Dadhi. Second verse also there. Yani Yanta Gitani Tadbhala Charitani Cha Dadi Nirmanthane Kale Smaranti Tanya Gayata. Is it? Shkovacha Grihada Sisu. Mataji Kovacha Ekada Grihada Sisu Begehine Tani Tadbala Charitani Cha.
Kada grihada sisu. Bala Charitani Cha. Okay. क्लास मैं प्रयास करूंगा हिंदी में, चलेगा? लेकिन पहले मैं इसको पढ़ूंगा इंग्लिश में. Sisikade Goswami continued, one day when Mother Yasoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Om Ajnana Timirandasya Jnanandana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pastatya Desatharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो आज भी इस पहले मुरारी गुप्ता थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करूंगा. डिसअपियरेंस ना तिरुबाव मुरारी गुप्ता बहुत महान भक्त, कृष्ण भक्त नहीं थे, राम भक्त, और रोज राम का नाम लेते थे, कृष्ण का नाम नहीं, सिर्फ राम. अगर बोलेंगे तो कृष्ण का नाम ले लो, नहीं होता, सिर्फ राम. क्यों? हाँ? नहीं, वो हनुमान है, हनुमान जी, हनुमान जी के अवतार. हनुमान जी सिर्फ राम का नाम लेते. सीताराम सीताराम जय जय राम जय जय राम. तो वो वैद्य भी था, वैद्य डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर. तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण नाथ चैतन्य महाप्रभु को कहा था, ये तो कलयुग है, तो कृष्ण का नाम चलता है, अभी कृष्ण का नाम चलता है, राम का नाम तो त्रेता युग में चलते थे, तो आप कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण का नाम गाओ. और मुरारी गुप्ता ने कहा, हाँ महाप्रभु मैं प्रयास करूंगा, रात को मैं चैंटिंग करूंगा कृष्ण का नाम. तो घर गए, जब प्रयास किया कृष्ण भगवान का नाम लेना मुश्किल, प्रयास किया, कृष्ण कृष्ण राम, या राम का नाम आ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण राम.
कृष्ण का नाम नहीं आता, सिर्फ राम। तो नेक्स्ट टाइम वो महाप्रभु उनको मिला, महाप्रभु ने कहा, ने पूछा उनसे, आप अपने राम कृष्ण का नाम ले रहे हो? हैं? और मुरारी गुप्ता ने कहा नहीं, नहीं हो रहा है, मैंने सोचा मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि आपने मुझको ये दिया, संदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं आत्महत्या करूंगा। फिर भी मैं राम का नाम भी नहीं छोड़ सकता। कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है तो मैं सोच रहा हूं मैं आत्महत्या करूंगा। फिर महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। The best servant never leave his master. A good master never leave his servant. समझ रहे हो? आपने पास हो गया, टेस्ट एग्जाम पास हो गया। I was trying to test you. I was trying to परीक्षा, right? आपने पास हो गया। जो मालिक है उनकी सेवा कभी कभी नहीं छोड़ता है, और सेवक जो है मालिक को नहीं कभी कभी नहीं छोड़ता। तो यू आर द बेस्ट सर्वेंट ऑफ हनुमान जी। कंटिन्यू। सीताराम जय जय राम। वो पास हो गया। वो हनुमान है ना, मुरारी गुप्ता कौन है? हनुमान जी है, ग्रेट सर्वेंट ऑफ रामचंद्र। एक बार कृष्णा गरुड़ को कहा जाओ हनुमान को बुलाओ। कृष्ण ने कहा गरुड़ को जाओ हनुमान को बुलाना। गरुड़ गए हनुमान के पास, हनुमान जी कृष्ण आपको बोल रहे आने के लिए। हनुमान ने कहा आई एम नॉट फ्री, टेल हिम आई एम आउट ऑफ स्टेशन। वो नहीं गए और गरुड़ वापस आ गया। गरुड़ कहा कृष्ण को नहीं आ रहे, और कृष्ण ने कहा जाओ जाओ उनको कहो रामचंद्र भगवान पुकार रहे, इस कॉलिंग। जब गरुड़ गए ना, हे हनुमान जी रामचंद्र आपको इस कॉलिंग यू, झट से चले गए। गरुड़ से आगे पहुंच गए वहां। गरुड़ आगे आगे जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी पहले, गरुड़ से पहले पहुंच गए। शिवारे गोविंद की। तो एक तो भगवान है, दूसरा सेवक है। हम कभी कभी भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो भगवान है, सेवक तो सेवक ही है। तो एक बार मुरारी गुप्ता ने क्या किया? मुरारी गुप्ता ने एक चाकू, चाकू समझते हैं, छुपाया किचन में। उन्हें रखा चाकू को, और वो क्या करना चाहते थे? आत्महत्या रात को। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब महाप्रभु चले जाते हैं, भगवान चले जाते हैं ना वापस, स्वधामो उपागते, कृष्ण स्वधामो उपागते। जब भगवान चले जाते हैं तो दुख होता है भक्तों को। हर बार ऐसे होता है, जब कृष्ण भगवान चले गए भक्त लोग बहुत दुखी थे। रामचंद्र भगवान भी चले गए, भक्त लोग बहुत दुखी। महाप्रभु भी चले गए थे, भक्त लोग बहुत दुखी थे। तो मुरारी गुप्ता को पता है अगर महाप्रभु चला जाएगा तो मैं भी बहुत दुखी होंगे, तो इसलिए मैं महाप्रभु जाने से पहले मैं आत्महत्या करूंगा।
तो एक बार महाप्रभु पहुंच गए उनके पास घर में। महाप्रभु गए मुरारी गुप्ता के पास। है मुरारी? मुरारी कहा, हाँ हाँ महाप्रभु, क्या सेवा है? एक चाकू मुझे दीजिए, चाकू मुझे दे दो। कैसे पता हुआ? भगवान है ना। हाँ, तो ये मुरारी गुप्ता है, हनुमान जी, हाँ, राम भक्त हनुमान, हाँ, मुरारी गुप्ता है। और वह चरित्र में आता है मुरारी गुप्ता। उनका मंदिर अभी भी है नवद्वीप में, मुरारी गुप्ता। वैद्य था, वैद्य। तो एक बार और एक पॉइंट है, महाप्रभु के घर में गए थे। महाप्रभु ने चावल खाया, चावल। नेक्स्ट डे तो इंडाइजेशन हो गया महाप्रभु को। अब महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता के घर किचन में आ गया, मुरारी गुप्ता मेरे को इंडाइजेशन हो गया, और इंडाइजेशन को क्यों करने के लिए पानी पीना चाहिए। तो अंदर किचन में मुरारी गुप्ता का जो पॉट्स, बर्तन, कप्स, मुरारी गुप्ता की कप्स लिया और इसमें पानी पी लिया महाप्रभु ने। मुरारी गुप्ता महाप्रभु को मना कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने झट से पानी पी लिया। और मुरारी गुप्ता का जो सेवक, सर्वेंट, हाउस होल्ड सर्वेंट था, इसको देख करके वो विचलित भाव में आ गया और बेहोश होकर गिर गया। आनंद भाव। वो भक्त नहीं है, सिर्फ घर का जो सेवक रहता ना, सर्वेंट्स, सिर्फ मुरारी गुप्ता की संग लेने से वो भी भाव में पहुंच गया, कृष्ण प्रेम। तो ये पॉइंट है कि महाप्रभु, उनका जो पार्षद, एसोसिएट्स, वेरी वेरी एडवांस डिवोटीज। तो ये श्लोक जो लिखा है, एकदा गृह दासीसु, समझ रहे हो? एक दिन गृह दासीसु मतलब घर का जो दासी, सर्वेंट ऑफ द हाउस। क्योंकि यशोदा मैया रानी थे ना, यशोदा रानी। तो एकदा गृह दास, यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा नंद गेहिनी मीन्स क्वींस ऑफ नंद महाराज, क्वीन गेहिनी, वो रानी है। कर्मंतरा नियुक्तासु, निर्ममन था स्वयं दादी, स्वयं दही बना रहे थे यशोदा। क्योंकि सर्वेंट लोग जो क्या करते थे, बिजी थे अलग अलग सेवा में। अभी यशोदा मैया स्वयं दादी, मतलब लिखा है ना स्वयं, वो स्वयं दही करने लगा, माखन। यानी यानी हा गीतानी तद बाला चरितानी च, यानी यानी। तो जब माखन कर रहे थे, तद बाला चरितानी च, किसको? बाला मीन्स कृष्णा का गुणगान गा रहे थे। ऐसे करते थे और उसके बाद कृष्णा भगवान का गुणगान कर रहे थे। यशोदानंद दुलाल गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। ऐसे तो यशोदा मैया एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं थी, कॉलेज नहीं गए, लेकिन फिर भी वो कंपोजिशन करते थे, कंपोज पोएट्री, पोएम
कृष्ण भगवान का जो गुणगान कर रहे थे। तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले, जब दही मंथन कर रहे थे, और सिर्फ नहीं स्मरण थी, किसका स्मरण थी? गोपाल के स्मरण, गा रहे थे, आ गाया था, भी गा रहे थे, अब गा रहे थे, कृष्ण के स्मरण भी कर रहे थे, दोनों स्मरण, कृष्ण का स्मरण। तो वृंदावन जो है भगवान लीला किया था, और वृंदावन कहते हैं द अबोध ऑफ प्रेम, और द्वारका द अबोध ऑफ ड्यूटी, लेकिन वृंदावन द अबोध ऑफ प्रेम, क्योंकि कृष्ण भगवान वृंदावन में ब्रिजवासी लोगों को पता नहीं कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनको पता नहीं कि कृष्णा भगवान ही है। द्वारका में वो मानते हैं, लेकिन वृंदावन में कोई नहीं जानते, सब लोग कवर्ड हो गए लोग की माया से। कभी कभी बोलते हैं, लोग बोलते हैं देखो आपका बेटा है ना भगवान है, फिर नंद महाराज पूछते हैं तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द बिग डील, ऐसे कहते हैं। गोपियों भी कभी कभी लोग कहते हैं ये एक बार तो एक मीटिंग हुआ था नंद उपानंद से, उपानंद ने मीटिंग रखा, उपानंद 4 भाई है ना, नंदा, सुनंदा, उपानंदा, अभिनंदा, सबसे बड़ा उपानंद। उपानंद ने एक मीटिंग को बुलाया, सबको मीटिंग किया, और एजेंडा क्या है? नंद महाराज और कृष्ण। सब लोग बोल रहे थे देखो आपका जो बेटा है ना भगवान है, उन्हें असुर को मारा और गोवर्धन को भी उठाया, तो भगवान ही है। अगर भगवान नहीं है, प्रसिद्ध देवता है, अगर देवता नहीं है, एक योगी होना चाहिए। सब लोग कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे थे। और देखो यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण को गायों को जंगल में भेजते हैं, जाओ चलाओ गायों को। ये अच्छा नहीं, ये आज से स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि ये भगवान है, कृष्णा भगवान है। नंद महाराज ने वो सुन रहे थे, ऐसे वो सुन रहे थे सब लोग क्या कह रहे हैं, और वो ने कहा, बाद में नंद महाराज ने कहा, किसने कहा कि मेरा कृष्ण भगवान है? मुझसे मांगो, मैं आपको बताऊंगा वो कौन है, वो क्या करता है घर में। जब दर्द होता है ना, पेट का जो दर्द होता है ना, वो भागते आते हैं माँ के पास, ये भगवान है। अगर हम उनको मक्खन देते हैं और मक्खन में ज्यादा साकर चीनी नहीं है, वो नाराज हो जाते हैं, और किचन में सब उल्टा होता है, जस्ट टर्न्स एवरीथिंग अपसाइड डाउन। तो व्हाट काइंड ऑफ योगी इज दिस? योगी कंट्रोल का जो इंद्रिय कंट्रोल में कर सकते हैं ना, वो हाउ व्हाट काइंड ऑफ योगी? तो ऐसे बोल रहे थे। बाद में सब लोग मीटिंग के बारे में भूल गए, सब लोग हंसने लगा, इतने जोर से हंसने लगा। कभी कभी मानते कृष्ण भगवान है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। वो क्या उनको अच्छा लगता है? जब यशोदा मैया उनको डांटती है,
डांटते हैं. Chastisement. He likes chastisement. He doesn't like the prayers of the Vedas as much as he liked the chastisement. जब यशोदा मैया उनको डांटती है, और यशोदा मैया उनके हाथ में क्या है? स्टिक. चस्टाइज करता ना, दंड देता है कृष्ण को. कृष्ण अच्छा लगता है. तो ये लीला जो है कल कार्तिक महीना में दिवाली के दिन, मक्खन चोर. मक्खन चोर. देखो पर्वत मुनि ने लिखा ना, नमः ईश्वरम सचिद आनंद रूपम. पहला पहला शब्द जो है तत्व, तत्व विशेष्ट. नमः ईश्वरम, पहला पहला शब्द प्रणाम ना. नमः ईश्वरम, किसको? ईश्वर को. नमः ईश्वर, पहला पहला शब्द जो है नमस्कार करने का. और दूसरा किसको? ईश्वर को. ये तत्व विशेष तत्व के बारे में वो इस श्लोक में. श्लोक नमः ईश्वरम सच्चिद, और किसको? ईश्वर कौन है? सच्चिद आनंद रूपम. और दूसरा पॉइंट है यहां भगवान का जो रूप, सुंदर रूप के बारे में कहा गया है. रूप विशेष. पहला शब्द है तत्व विशेष. नमः ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम. और लीला विशेष यशोदा विदोयुका तवालमानम. तत् इसका लीला बहुत पूरा पूरा लिखा है इसमें. पहला तो ने कहा मैं प्रणाम कर रहा हूं भगवान को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कौन सा भगवान? जो चोरी करता है. कहा ना ईश्वरम, नमः ईश्वर, ये अच्छा है, अच्छा हो गया. लेकिन कौन सा भगवान? जो मक्खन चोरी करता है. ये हमारे भगवान. इति दीक्षलीला बीर आनंद कुंदे. आनंद कुंड में अगर हम लोग भगवान की लीला सुनते हैं, हम क्या होता है? हमको आनंद कुंड में डूब जाते हैं. किस प्रकार का कुंड? आनंद कुंड. कल्पना कीजिए कोई आदमी तो कुंड में डूब रहा है, वो मर जाएगा ना. हाँ, गेट ड्राउन. लेकिन यहाँ हम लोग ड्राउन नहीं होते हैं, डूब नहीं हो जाते हैं. क्या होता है? हम आनंद कुंड में तैरते हैं. इति दृक्षलीला बेद आनंद कुंड. आनंद कुंड में भगवान लीला करता है भक्तों के लिए. तो भक्तों लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं, आनंद कुंड में सबमर्ज हो जाते हैं. आनंद आनंद ही. तो भगवान भक्तों के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम. भगवान आता है, बार बार आता है भक्तों के लिए, लीला करने के लिए, भक्तों के लिए. भक्तों लोग आनंद, बहुत आनंद मिलता है, इसीलिए बार बार आता है भगवान श्री कृष्ण. और दूसरा पॉइंट कि वो कृष्ण भगवान चोरी करता है माखन जो है. कहाँ लेके जाते हैं माखन? रूम में जाते हैं और खाते हैं माखन को. तो ये सब भगवान का जो लीला है बहुत बहुत सुंदर है, भक्तों के लिए कहा गया है.
और इस लीला में भी एक पॉइंट कहा गया भी कि मुक्ति नहीं चाहता हूं। क्या चाहता? वरम देवा मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न च नम्रीने हम वरिषादपिया। वरम देवा मोक्षम न, मोक्ष मुक्ति नहीं चाहता। वो क्या चाहते? भगवान कृष्ण का जो रूप बाल गोपाल, उसको देखना चाहते हैं। कोई आदमी मुक्ति चाहते हैं ना, मोक्ष, सयुज मुक्ति, इसको नहीं चाहता हूं। वो क्या चाहते हैं? वरम देवा मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चान्यम्रीने हम वरिषदपिया। गोपाल बालम, वो क्या चाहते हैं? वो दर्शन करना चाहते हैं। किसको? गोपाल। तो एक बार ऑल्सो मणिग्रीवा नलकुवरा भी गए थे। कहाँ गए? नलकुवरा और मणिग्रीवा कहाँ गए? कैलाश में, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। क्योंकि मणिग्रीवा नलकुवरा, उनका पिताजी का नाम है कुबेर, और कुबेर जो है कैलाश उनकी है, जहां शिव जी रहते हैं ना, कैलाश। तो किसका है? पहले कुबेर की था। तो शिव जी गए वहां रहने के लिए कैलाश में। तो नलकुवरा मणिग्रीवा, वो दो बेटे कुबेर की। पिताजी पैसे वाला है ना, तो वो दोनों इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। और वो कहाँ गए? वहां गए कैलाश में एंजॉयमेंट करने के लिए। और वहां क्या किया? वो दोनों क्या किया? स्त्री को लाया, प्रोस्टिट्यूट, हेवनली प्रोस्टिट्यूट। तो कैलाश में नहीं है, लेकिन उन्हें ऑर्डर किया। और पीने का जो दारू भी नहीं होता है वहां, क्योंकि शिवजी रहता ना, ये भी ऑर्डर किया। पानी में नाचते थे, गा रहे थे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। नारद मुनि भी पहुंच गए वहां। जब नारद मुनि जी पहुंच गए तो उन्हें देखा दोनों स्त्री के संग ले रहे हैं पानी में। नारद मुनि दोनों को श्राप दिया, वृक्ष पेड़ बन गए दोनों। तो नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि कहाँ जा रहे थे? शिव जी को मिलने के लिए, शिव जी का संग लेने के लिए। और उन्हें देखा मणिग्रीवा नलकुवरा इंद्र तृप्ति करते, उसको श्राप दिया, वो वृक्ष बन गया वहां। और लास्ट लाइन क्या है तो पता? लास्ट लाइन किसको पता है? तो दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाहते थे रस्सी से, हाँ, रस्सी से, लेकिन दो उंगली कम होते थे। हर बार वो कृष्ण को बांधना चाहते थे, दो उंगली शॉर्ट। क्यों? कि भगवान के पास शक्ति है, और एक शक्ति जो है इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति का मतलब भगवान की इच्छा। हम भगवान को बांध सकते हैं अगर भगवान चाहिए, तभी हम भगवान को बांध सकते हैं। अगर भगवान नहीं चाहते, हम नहीं भगवान को नहीं बांध सकते। तो यशोदा मैया ने प्रयास किया कृष्ण को बांधने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। हर बार दो उंगली
2 उंगली शॉर्ट। क्यों? क्योंकि वहां इच्छा शक्ति था। इच्छा शक्ति मतलब भगवान के शक्ति, इच्छा, ओन शक्ति, हिज डिजायर। तो माना करते थे यशोदा को कृष्ण को बांधने के लिए, प्रयास किया, लेकिन वहां इच्छा शक्ति आ गया और यशोदा को माना किया। लेकिन यशोदा प्रयास कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, तभी कृपा शक्ति पहुंच गया और कृपा शक्ति से यशोदा मैया ने कृपा शक्ति की कृपा शक्ति के कृपा से यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया। देखो, इच्छा शक्ति पहला ना कृष्ण की शक्ति है, ये कृष्ण की है। तो अगर कृष्ण नहीं चाहते तो हम कृष्ण को नहीं बांध सकते, लेकिन वहां कृपा शक्ति पहुंच गए। तो कृपा शक्ति ने क्या हुआ, क्या किया? ओवरटेक किया कृष्ण को, ओवरटेक। मतलब इसका मतलब है कृपा शक्ति कहां से आते हैं? श्रीमती रानी की। कृपा शक्ति, दिस रोप, जो रस्सी है, ये भगवान की शक्ति है, ये राधा रानी है। एक पॉइंट कहा गया, कृष्ण भगवान ने कहा था एक बार नारद मुनि को, नारद पुराण में आता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम एवा सत्यम, बिना राधा बिना प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। कृष्ण भगवान नारद मुनि को कह रहा है कि सत्य है, यही सत्य है, एवा सत्य पुनः सत्य, अगेन एंड अगेन। सत्य क्या है? इस शब्द, इस श्लोक में 4 बार कहा गया सत्य, सत्य सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एव सत्यम, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। बिना राधा रानी की प्रसाद की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा नहीं मिल सकता है। एक कृष्ण भगवान ने कहा नारद मुनि को, बिना राधा, बिना, बिना मतलब विदाउट, बिना राधा प्रसाद का प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। जो रस्सी जो है यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बांधा, ये वर्शिपेबल है, आरती कर सकते इसको, ये भक्ति है, भक्ति का रस्सी, प्लास्टिक का नहीं है, भक्ति की है। तो भक्ति का रस्सी से हम भगवान को बांध सकते हैं। भगवान का नाम है अजित। अजित का मतलब we cannot conquer, we cannot conquer God, लेकिन जीत हो सकता है, we can conquer him with the ropes of devotion, भक्ति प्रेम से। तो रथ यात्रा भी होता है ना, रथ यात्रा, रथ को घिसते हैं ना, कैसे? रस्सी से, ये वो भी सेम है। कृपा, कृपा शक्ति, राधा रानी, रस्सी से हम उसको घिस सकते हैं रथ को। रस्सी is not ordinary रस्सी, ropes, it's a ropes of devotion, a brilliant ropes of devotion. तो ये कार्तिक जो महीना है, समझना चाहिए, हम भगवान की को आरती करते हैं। ये सबसे बड़ा, हर त्योहार में, फेस्टिवल में एक दान होना चाहिए, और इस कार्तिक महीने सबसे प्रसिद्ध दान क्या है? दीप, दीप दान, भगवान को अर्पण करना। भगवान भी दीप समझते हैं, दीप, दिया, दीप दान।
तो भगवान ये जो भगवान सूर्य समान, लॉर्ड इज लाइक द सन. सो व्हाई डू वी ऑफर फायर टू गॉड? दैट्स द वे. यही तरीका है. जैसे हम गंगा जाते हैं ना, गंगा कैसे वर्शिप करते हैं, गंगा का पानी लेकर के गंगा को देता है ना. तो हाँ, हम कृष्ण को दीप दान देते हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया, लैम्प्स ऑफ डिवोशन. तो दिवाली भी आएगा. दिवाली मनाते ना, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ये लाइट कौन सा लाइट? ये वाला. कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, तत्तेनुकम नहीं, इवानुकम परतम जानम जम तमा नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन बश्वता. With the lamps of, with the shining lamps of knowledge. Most important light here. The shining lamps of knowledge. और क्या होता है? भगवान ने कहा कृष्ण गीता में, एवानुकम परतम ज्ञान जम तमः. जितने अज्ञानता होता है हृदय में, अंदर में अज्ञानता, इग्नोरेंस है, और भगवान अंदर रहते हैं परमात्मा के रूप में, और क्या करता है? पूरा डार्कनेस जो है अंदर वो निकालते हैं विद द शाइनिंग लैंप्स ऑफ नॉलेज. ऐसी श्री राधा गोविंद की. तो इसीलिए भगवान बार बार आता है. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट जो है नॉलेज, ज्ञान. इसीलिए जब भगवान चले गए अंत में, कलयुग में, साधु लोग पूछ रहे थे तो कृष्ण भगवान चल गए, सुधामो उपागते, कृष्ण सुधामो उपागते, चले गए. अभी क्या होगा? इसके साथ क्या चले गए? धर्म ज्ञान अधिवी. जो आदमी उनका विजन तोड़ गए, विजन नहीं है आजकल, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम ने प्रकट हुआ और भागवत गीता. तो यही है लैम्प्स ऑफ डिवोशन. कार्तिक महीना में हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे लैम्प्स ऑफ डिवोशन, दिया, दीप दान. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दान कार्तिक महीना में दीपदान हर रोज करना चाहिए. पूरा हम करेंगे, जैसे आग को, ये विक को जलाते हैं ना, पूरा हमारे जितने कर्म है, पाप है ना, पूरा चला जाएगा, बर्न हो जाएगा इस महीना. तो ज्यादा से ज्यादा इस कार्तिक महीना हम भगवान की स्मरण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की गुणगान करना, श्रवण करना ज्यादा से ज्यादा. हरे कृष्णा. श्री कृष्ण भगवान की, कार्तिक मास की, श्री प्रभुपाद की, निदाय गौर प्रेमानंदे. धन्यवाद. कोई प्रश्न है? Anybody has any question to ask? Okay. No question. Yes. Prabhuji, as you said, God doesn't listen to Vedas, hymns of Vedas, but He listens to the pure devotion. So I want to ask one question, that knowing Krishna through Vedas is a different realm than loving Krishna. How can we love Krishna? Is it different than knowing Krishna?
Vidascha sarver aham eva vedyo. Of the Vedas, I am to be known, Krishna said, right? But the Vedas also is very, very difficult to obtain Krishna through the Vedas. It's very, very difficult to obtain Krishna through the Vedas. And Krishna likes the chastisement of Yasoda. Krishna likes the stick chastised by Yasoda Maya more than the prayers of the Vedas. Yeah. Yes, that's explained. Because the Vedas speaks about the three modes of material nature mostly. Three modes of material nature. Nistray Gunya Bhavarjuna. Visaya Veda, Nistray Gunya Bhavarjuna. The Vedas deal with the material modes of nature. And Vedas does not really describe the Nam, Gun, Roop, and Lila of the Lord. This is why when Vyasdev, after writing the Vedas, he was not satisfied. And then Narada Muni said, you have written the Vedas, but you are not happy. Why are you not happy? Because you have not written the Nam, Gun, Roop, and Lila. So that will give satisfaction to the heart. When you hear about Nam, Guna, Roop, and Lila. So this is written in Srimad Bhagavatam, which is full of devotion. Krishna spoke about Karma Yoga in Gita, Jnana Yoga, Astanga Yoga. At the end he said, kick all this out. Sarva Dharma Parijaja Mamekam Charanam Raja Bhaktyamam Abhijanati. Only through bhakti you can understand me. You can bind Krishna with the ropes of devotion. Not with Gyan, you can't do. Not with Astanga Yoga. Not with Dan. Not with Tapasya. Not with austerity. Nothing. Only bhakti. It's saying in Bhagavad Gita. Only through devotion. Imagine you are doing some exam, sitting for exam, okay? In exam, before writing answer, you have to read the rules. You're not reading the rules, you start giving the answer. 30 questions. But at the end, it's written, do not write anything. Only your name. And give the paper back. What happened? Fail, right? So similarly, Krishna speak Karma Yoga. We start to follow that. Krishna speak Jnana Yoga. People start to follow that. And Astanga Yoga, at the end Krishna is saying, Sarva Dharman Paritaja Mamekam Saranam Bhakti Amam Abhijanati. Only through bhakti you can know me. Only through devotion. And you'll find the first 6 chapter of Bhagavad Gita speaks about Karma Yoga. The last 6 chapters speaks about Jnana Yoga. Only middle 6 chapters speaks about Bhakti Yoga. But you will find Bhakti Yoga even in the last 6 chapters. There also. Sarva Dharman Parijaja Mammana Bhavamat Bhakto. This is Bhakti. Even in the first 6 chapters, there is also Bhakti. Bhakti is everywhere. You know. Sabri Mata. What she did? Fruit. She was eating that fruit and offered it to Ram. Rama accepted because he offered with love and devotion. Patram Puspam Phalam Toyam. Yome Jnani? No, Jnani hi kaha. Yome Bhaktya Priyachate. With love and devotion. So Krishna is attracted with devotion only.
Even the wives of the Brahmanas, when the Gopas came to ask for food, the Brahmanas did not give. They want to do yagya. After yagya, then they will give food. But before yagya finished, they cannot eat. They are so stuck with niyam, so much niyam. But when the wives of the Brahmanas heard, they just took all the preparation and they went to give to Krishna for eating. Did not care about family, because Krishna is there. So devotion is highest. And when they came back, their wife, they were afraid that husband would be beating them. What happened? Oh, the husband, they did dandavat to the wife. Pranam kiya. Because they think that they have failed to recognize Krishna. Fail हो गया. तो इसलिए भक्ति most important. भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कैसे? भक्ति से, ज्ञान से नहीं, कर्म से नहीं, अष्टांग योग से भी नहीं, hatha योग. अभी कहते हैं ना hatha योग, राजयोग. तो राजयोग गीता में नहीं है. कहाँ लिखा है राजयोग? लिखा है hatha योग सिर्फ भक्ति योग से, devotion. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Any other question? We'll stop here, otherwise it's late. Srimad Bhagavatam ki, Sri Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. परम पूज्य सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज की